সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো 2021 চনৰ JEE মেইন পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ আদি দৰ্শকসকলক এই বিশেষ খবৰটি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী নিশাংকৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে JEE মেইন পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে 2021 চনত 4 বাৰকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা পুনৰবাৰ জনাইছো JEE মেইন 2021 চনৰ দিন আৰু বছৰটোত কেইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 2021 চনত JEE মেইন পৰীক্ষা বছৰটোত 4 বাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল আৰু মে মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা কেইটা প্ৰথম পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 23 আৰু 26ত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে উল্লেখিত 4 বাৰৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে 4 বাৰকৈ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো পৰীক্ষা অধিক ভাল হয় তাক গণনা কৰা হ'ব উল্লেখ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে JEE মেইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব তাক লৈ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘোষণা কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যে 2021 চনৰ JEE মেইন পৰীক্ষা 4 বাৰকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল আৰু মেত পৰীক্ষা কেইটা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰথম পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 23 আৰু 26 তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে 4 বাৰৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যে চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নীট আৰু আভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে JEE মেইন 2021 চনৰ পৰীক্ষাত পাঠ্যক্ৰম হাল সলনি কৰা নহয় বুলি ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে 2020 চনত অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষত নীট আৰু JEE মেইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত বহুতো ব্যাঘাত জন্মিছিল আৰু সেয়েহে এইবাৰ অন্তিমটো মাহত অৰ্থাৎ কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটি কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ খবৰ কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 2021 চনত JEE মেইন পৰীক্ষাৰ দিনো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল আৰু মেত পৰীক্ষা কেইটা অনুষ্ঠিত হ'ব 4 বাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 2021 চনত JEE পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে 4 বাৰৰ পৰীক্ষাত নিজৰ ইচ্ছামতে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে 4 বাৰকৈ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো পৰীক্ষা অধিক ভাল হয় তাক গণনা কৰা হ'ব পুনৰবাৰ জনাইছো JEE মেইন 2021 চনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে 2021 চনত 4 বাৰকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব JEE মেইন পৰীক্ষা সেই মন্তব্যটি আমাৰ হাতত আছে সেয়া আগবঢ়াইছো अंक सुधारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे अंक आप अर्जित कर सकते हैं ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है पहले प्रयास में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का भी आपको पता चलेगा और जिससे जब दूसरा प्रयास आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा पूरा वर्ष जो बर्बाद होता है कई बार वो बर्बाद होने से रुक जाएगा यदि किसी कारणवश परीक्षा में कभी आप जैसे सम्मिलित नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं आपको एक अवसर में यदि चूक हो गई तो दूसरे में चूक हो गई तो तीसरे में चूक हो गई तो चौथा तो आपके लिए मैं सोचता हूँ कि इतनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि आपके मन में कहीं कोई कसक नहीं रह जाएगी
यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है, जिसमें के बाद जेईई में नहीं बैठ सकता, तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे, यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूर है वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है, और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा, कुछ क्षेत्र, कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है कि हर परीक्षा में उसको उपस्थित होना है। यदि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होना है तो वो बेहतर अंक, जिस 4 परीक्षाएं यदि दी हैं उसने, तो उन चारों में जो भी बेहतर तरीके से उसके अंक होंगे वही उसको अंतिम परिणाम होगा। चारों में से वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अंक उसके होंगे वही सम्मिलित होगा। एनटीए ने पाठ्यक्रम में संशोधन के संदर्भ में देश भर में विभिन्न बोर्डों के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा हुआ है, और ये निश्चित किया है कि प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे मन में थे कि कभी सीबीएसई बोर्ड है, विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी अलग अलग समय में होती हैं, तो कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसमें और कुछ ये भी आया था कि यदि जो कुछ पाठ्यक्रम किसी बोर्ड ने कम कर दिया और किसी बोर्ड ने पूरा पाठ्यक्रम किया, तो फिर जो पूरा जिसको 30%, उदाहरण के लिए सीबीएसई ने कम किया है, तो फिर किस तरीके से कोई 1-2% करेगा और एक 30%, 20% कम करेगा, तो उसका भी रास्ता निकाला गया है। और इसलिए निश्चित किया गया है एनटीए के द्वारा कि 90 प्रश्न होंगे, जिसमें जो अभ्यर्थी को केवल 75 प्रश्न ही हल करने होंगे, तो उसमें ये भी और वो भी सभी कवर हो जाएंगे। इसमें 15 वैकल्पिक प्रश्नों में नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। जो 15 वैकल्पिक प्रश्न होंगे उसमें नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवार के सर्वश्रेष्ठ एनटीए प्राप्तांक के आधार पर ही उम्मीदवार की मेरिट सूची और रैंकिंग बनाई जाएगी। तो बहुत अच्छा अवसर है, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको कि इस अच्छे अवसर का बहुत अच्छा आप लाभ उठाइए। और आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के छात्र भी इंजीनियर बन सके और अपनी मातृभाषा में आने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सके। तो अभी पहले चरण में पहला कदम सशक्त तरीके से उठाने की कोशिश की है एनटीए ने, और मुझे कहते हुए खुशी है और गर्व भी महसूस होता है कि पहली बार देश के अंदर जो जेईई की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित हो रही है। वो अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, और ये जितनी ये भारतीय भाषाएं हैं, इन भारतीय भाषाओं में पहली बार ये जेईई